Hello everyone. Today we are going to discuss a very important topic, democratic decentralization. So, where do we find this democratic decentralization? We find it in our constitution part 9, part 9a and part 9b. Okay? So, in part 9 was added by which amendment? 73rd Constitutional Amendment Act 1992. And part 9a, it was added by 74th Constitutional Amendment Act 1992, and part 9b, which was added by 97th Constitutional Amendment Act 2011. So this part 9a, 9b of the Constitution provide for decentralization in our Indian system. Okay, so part 9 provides about panchayats, and part 9b talks about municipalities, and part 9b talks about cooperative societies. So we are going to discuss each one of them. Okay, part 9, 73rd Constitutional Amendment 1992 talks about panchayats. Part 9a, 74 CAA talks about municipalities, and part 9b, amendment by 97th Constitutional Amendment Act 2011 talks about cooperative societies. Okay, first the topic of discussion is democratic decentralization. What is democratic decentralization? It simply says that, okay, I'll write here, democratic decentralization. What does this mean? Democratic decentralization. It says nothing but the majority of powers and functions shall be given to the tier of the government which is nearest to the people. Okay. Majority of the powers and functions shall be given to the tier of the government which is nearest to the people. You know, let us say our government is divided into three categories. One is local, another is state level, and another is central level, union level, central or union level. So the majority of the powers and functions are given to the tier of the government which is nearest to the people. Okay, this is what democratic decentralization talks about, and this is based on principle of subsidiarity. Okay, you need to remember principle of subsidiarity. So what is now we know that we have 73rd Constitutional Amendment Act and 74th Constitutional Amendment Act, and that is how we have Panchayat Raj and municipalities. But what was the system before 1992? So it is always good to know about our history. So what is before 1992? What is the situation before 1992? This is what we need to discuss about. Okay, before 1992, the majority of the functions are concentrated on central level. Okay, so before 1992, the majority of the functions are concentrated on the central level or the state level. Therefore, there felt a need for creation of the third tier. What is third tier? It is the grassroots level, that is Panchayat Raj institutions and local bodies. इसका need आ गया हमें. Okay. So we shall discuss how it varies in different eras first. Okay. Panchayats in different eras. Panchayats in different eras. One is Vedic era, another is Epic era, and the next is Medieval era, and the fourth is British era. Okay, how the panchayats are different in each and every era. Okay, how the government is at the grassroots level in each era.
Okay, in Vedic era, the panchayat is there and it is called panchayatam. Panchayatam is nothing but the assembly of 5 and it is headed by a spiritual leader. Panchayatam, okay. Oh, you can draw a pentagon. Oh, this is hexagon, okay. But yeah, you can draw a pentagon. Panchayat is nothing but the assembly of 5 and it is headed by a spiritual leader. ये मान लो spiritual leader, ठीक है, थोड़ा सूर्य, okay. Headed by the Panchayatam is nothing but the assembly of 5 and it is headed by the spiritual leader. And what is epic era? In epic era, there are Janapads and Pur, okay. Janapad and Pur system. There was also a concept of caste panchayat. And this caste panchayat is a member of King's Council. जो लोकल लेवल पे caste पंचायत है वो स्टेट लेवल की किंग पंचायत किंग्स काउंसिल का मेंबर होता है. ओके, दिस इज अबाउट जनपद एंड पुर. So in Vedic era we used to have panchayatam at local level, and in epic era we used to have Janapad and Pur and caste panchayat. And in medieval era we used to have the Delhi Sultanate was there in the medieval era. If you remember, in medieval history, Delhi Sultanate was divided into vilayat. Okay, Delhi Sultanate was again split into vilayats. And vilayat, the functions are divided between vilayats. There are again sub functions and they are divided between Batwari. Batwari is for revenue. Okay, you can write revenue. Batwari is for revenue. And Makaddam, you have Makaddam. Makaddam is for administration purposes. And we also have Chaudhary. Chaudhary क्या करता है, डिस्प्यूट्स, अगर कुछ डिस्प्यूट्स होता है वो रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स. ओके, सो ये फंक्शंस है. Before 1992 we used to have Vedic era, there is a different panchayat, it's called panchayatam. Epic era we had Janapad and Par caste panchayat system, and this caste panchayat is a member of King's Council. And next we used to have Delhi Sultanate was split into vilayat, and in vilayat we have subcategories: Batwari for revenue, Makaddam for administration, Chaudhary for dispute resolutions. And in British era there is Mayo resolution. Okay, Mayo resolution 1870. Mayo resolution 1870, it is regarded as Magna Carta of urban governance in our country. Okay, this is also called Magna Carta of urban governance. If you remember, what is Magna Carta of our constitution? It's fundamental rights, part 3. Okay, similarly, and in the time of British era, the Magna Carta of urban governance is driven by Mayo resolution 1870. Okay, there is a one PYQ question. Lord Ripon. Who is Lord Ripon? Lord Ripon. What is he famous for? Lord Ripon is known as father of local self governance. Father of local self governance. Okay, ये याद रख सकते हो आप. Father of local self governance is Lord Ripon. Okay, we have discussed democratic decentralization. What is democratic decentralization? It says that majority of powers and functions shall be given to the tier of the government which is nearest to the people. Okay, tier of the government which is nearest to the people. Majority of the power and function shall be given to the tier of the government which is nearest to the people. And you know that currently for Panchayat Raj and municipalities, we the powers are from
73rd Constitution Amendment Act 1992 and 74th Constitution Amendment Act 1992. But before 1992, do we have the panchayat system? Yes, we do have. Let us discuss the panchayats in various eras. In Vedic era, we used to have panchayatam. Panchayatam is nothing but the assembly of five, and it is headed by a spiritual leader. And in epic era, we had Janapad Sanpur caste panchayat, and caste panchayat is a member of King's Council. Okay, Janapad and Pur caste panchayat, itna tak clear hai. In medieval era, there is we had Delhi Sultanate, and Delhi Sultanate was split into vilayats, and in vilayats we had Batwari, Makaddam and Chaudhary. Batwari for revenue administration, Batwari is for revenue collection, and Makaddam is for administrative function, and Chaudhary is for dispute resolution, and Lord Ripon is known as father of local self-governance. Okay, now we have discussed panchayats in various era. Now let us discuss Panchayat Raj. How is Panchayat Raj post-independence? Post-independence era. Okay, there is a person, a constitutional philosopher called ग्रैनविले ऑस्टिन. ये आदमी एक कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसोफर है. ओके, फिलोसोफर है. ओके, सो ही हैड ड्रिवन रोड टू सोशल रिवॉल्यूशन. मतलब एक डिबेट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, उसके बाद ग्रैनविले ऑस्टिन ने एक पाथ में डिराइव किया सोशल रिवॉल्यूशन की तरफ. एंड आई विल टेल यू आफ्टर दिस डिबेट ना, देर आर 3 main approaches. After the social revolution, the social revolution is between 3 approaches. We shall discuss. There are 3 approaches. Okay, what are the 3 approaches? One is Gandhian approach, and second is Nehruvian approach, and third is Ambedkar approach. Okay, Gandhian, Nehruvian and Ambedkar's approach. So what does Gandhian's approach talk about, and what does Nehruvian's approach talk about, and Ambedkar approach talk about? Okay, let us discuss this. Okay, Gandhian approach, it believes in village Swaraj. Okay, village Swaraj. This idea is based upon bottom up approach कि bottom strong होना चाहिए एक country को develop होने के लिए. Village is the primary unit for development. This is what village Swaraj talks about. Okay, this is Gandhian approach. And what is Nehruvian approach? It talks about modernization and industrialization. Okay, it talks about modernization and industrialization, and it is based on the top bottom approach. मतलब टॉप स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. मॉडर्न, अगर ये मॉडर्न हो जाती है टॉप, तो ऑटोमेटिकली नीचे भी इंडस्ट्रियलाइज हो जाएगी. ओके, दिस मस्ट बी मॉडर्नाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. ये बात करता है नेहरूवियन अप्रोच में. एंड अंबेडकर अप्रोच क्या बात करती है? इट टॉक्स अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत्स एज इट लीड्स टू रीजनल कम्युनल पॉलिटिक्स. ओके, मतलब वो पंचायत का पूरा अगेंस्ट है अंबेडकर अप्रोच में, क्योंकि ये लीड करती है कम्युनल पॉलिटिक्स की तरफ. तो अंबेडकर बिल्कुल खिलाफ है पंचायत के अगेंस्ट. ओके, so we have discussed Gandhian approach, which is village Swaraj. This idea is based on bottom up approach, and village should be
should be the primary unit for development. This is what the Gandhian approach says. And Nehruvian approach, it is based on modernization and industrialization. It is top to bottom approach. And a country develops, if development happens in cities, then automatically villages also get developed slowly. Okay, this is what Nehruvian approach talks about. And next, third, it is Ambedkar approach. Ambedkar approach is against the panchayats because it will lead to communal politics, regional communal politics. Okay. ओके, पोस्ट, ये एक 3 अप्रोचेस है. अब हम देखते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस कैसे हुआ. पहले आती है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स 1952. ओके, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952, ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ. कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952. This program was started with the financial assistance of United States. Okay, so it was aimed at a transmission of stagnant villages into progressive rural societies. For example, focusing on मतलब stagnant villages है, इसको हमें डेवलप करना है. ओके, और ये चलती है विद द फिनेंशियल असिस्टेंस of US. So what are the things that were focused on? The focus is on economic development. The focus is on social justice. The focus is on democratic participation. Okay. So by focusing on these 3 main parameters, a village can be developed. Okay, it was aimed at the transformation of stagnant villages into progressive rural societies by focusing on economic development, social justice and democratic participation. In economic development, what do? Economic development matlab it is focused on generating employment opportunities in rural areas and development of industries focused on education and agriculture. Okay, such kind of things are focused in economic development. And okay, when it comes to social justice, they had welfare policy model. Okay, welfare schemes लेके आना villages को, ये सब social justice के अंदर आती है. And democratic participation मतलब awareness to create awareness among the masses. So this comes under democratic participation. Okay, and हम आगे बढ़ते हैं. Next comes National Extension Services. National Extension Services 1953. कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 हो गया. अब हम नेक्स्ट देखते हैं नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज 1953. इसका पर्पस क्या है? मतलब ऑलरेडी स्टैग्नेंट विलेजेस प्रोग्राम है, तो फिर इसका पर्पस क्या है? इट्स पर्पस इज टू एंश्योर दैट दिस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP इज रीच्ड टू एवरी nook and corner. Okay, reach to every nook and corner of the country. Okay, ये ensure करना नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज 1953 का काम है. बट क्या होता है कि बोथ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स 1952 एंड नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 फेल्ड. ओके, ये दोनों फेल हो गया, मतलब लोगों के तरफ आ नहीं रही है, तो हमें कुछ और देखना पड़ेगा. ओके, सो आफ्टर बोथ द प्रोग्राम्स वो फेल्ड, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 एंड नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज 1953, वी हैड बलवंत राय मेहता कमिटी. ओके, 1 2 हो गया, अब 3 क्या है? बलवंत राय मेहता कमिटी. आप याद रख सकते हो बलवंत राय.
इज बलवंत रॉय. ओके, बलवंत राय मेहता कमेटी 1957. सो इसका पर्पस क्या है? इनका पर्पस ये है कि टू एसेस द परफॉर्मेंस ऑफ CDP एंड NES. ये फेल क्यों हुआ, इसका पर्पस. ओके, इट्स पर्पस इज टू एसेस द परफॉर्मेंस ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड नेशनल एक्सटेंशन सर्विस. ओके, इसका पर्पस यही है. एंड बलवंत रॉय मेहता कमेटी, इट इज़ द फर्स्ट फॉर्मल कमेटी टू रिकमेंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ PRI. इसलिए ये कमेटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इट इज़ द फर्स्ट फॉर्मल कमेटी टू रिकमेंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस. ओके, Balwant Rai Mehta committee also suggested a model of Panchayat Raj institution in the country which is a 3-tier level. Okay, a 3-tier level मतलब इस कमेटी ने ऐसे रिकमेंड किया कि बस इस कमेटी थोड़ा ऐसे रिकमेंड किया. क्या हो गया? ओह शिट, एक सेकेंड. So Balwant Rai Mehta committee, it is the first formal committee to recommend establishment of Panchayat Raj institution. विलेज पंचायत. सो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास विलेज पंचायत होना चाहिए और ब्लॉक लेवल होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल होना चाहिए. ओके, इट इज़ विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट. तो ये कमेटी बोलती है कि पंचायत में ना 3 लेवल्स होना चाहिए, 3 टायर पंचायत होना चाहिए, विलेज में, ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में. ओके, विलेज पंचायत में डायरेक्ट इलेक्शंस होगी और ब्लॉक पंचायत में इनडायरेक्ट इलेक्शंस. मतलब इसमें जो भी चूज़ किया गया वो लोग ब्लॉक पंचायत में इलेक्ट करेंगे. तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस. ओके, ये डायरेक्ट इलेक्शंस है. एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल में DM इज़ हेड. ओके, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विल बी द हेड. तो ये रिकमेंड करती है बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 एंड इट इज़ द फर्स्ट फॉर्मल कमेटी टू रिकमेंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन. ओके, सो इसको हम ऐसे भी बोलते हैं कि इट इज़ अ DM सेंट्रिक मॉडल ऑफ ग्रोथ. हम ऐसे भी बोलते हैं इट इज़ अ DM सेंट्रिक मॉडल ऑफ ग्रोथ. ओके, ओके. The recommendations of Balwant Rai Mehta committee were accepted. Okay, it was accepted and the first panchayat, the first panchayat was set up in Nagpur and the second panchayat, it was set up in Andhra Pradesh, Shadnagar. It is set up in Nagpur in 1959 after 2 years and the second panchayat was set up in Andhra Pradesh, Mehboob Nagar. Okay, सो ऐसे ये बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 के बाद 1967 to 68, by 1967 to 68 we had 5.79 lakh पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री. ओके, अप्रोक्सीमेटली कितना है? 5.79 लाख पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस. ओके, इतना नंबर, मतलब 5.79 लाख पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस है. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है 1957 के बाद? प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि देयर इज़ अ नॉन यूनिफॉर्मिटी इन स्ट्रक्चर. मतलब नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्ट्रक्चर. मान ले हम लेते हैं राजस्थान में एक 3 टायर मॉडल है. लेट मी राइट, नॉन यूनिफॉर्मिटी of structure. Okay, Rajasthan had a 3-tier model and West Bengal had 4-tier model. So Jammu and Kashmir, Kerala, they had a 1-tier model. Okay, अब आप ही बताइए, एक एक स्टेट में अलग अलग पंचायत राज इंस्टीट्यूशन है. देयर इज़ ऑल्सो ओके 2 टायर इज़ मिसिंग. 2 टायर भी है, हरियाणा में 2 टायर है, हरियाणा,
पंजाब, पंजाब और उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, यहाँ पे 2 टायर है। जम्मू एंड कश्मीर, केरला में 1 टायर था एंड वेस्ट बंगाल और राजस्थान में 3 टायर 4 टायर था। तो देर इज़ अ यूनिफॉर्मिटी, नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्ट्रक्चर. So by 1970 what the government thought is that the priority of the government with respect to rural development, it has changed, and its focus is more on poverty alleviation, employment opportunities, industries, food securities, okay, etc. So for rural development, there is a district region development authority with a DM as head, and it was established, DRDA हम इसको बोलते हैं. And DRDA, it was established, DRDA was established with the DM as head. Okay, DRDA followed an arm chain approach. मतलब DRDA याद रखिए आप, district region district. My handwriting is not going so good. Sorry, DRDA, District Region Development Authority. There is a District Region Development Authority, and for rural development, DRDA was established at different locations, and DRDA followed an arm chain approach. The majority of policy were formulated by the Secretariat. They were implemented by the District Magistrate, and the District Magistrate has no role in policy making. Okay. तो एक ही था. इतना याद रखिए कि by 1970s the government approach has changed, and its focus was mainly on poverty alleviation, employment opportunities, industries, food security, इन सब के ऊपर. एंड फॉर रूरल डेवलपमेंट देर DRDA एस्टेब्लिश किया गया, DRDA एस्टेब्लिश किया गया. एंड DRDA एक आर्म चेन अप्रोच फॉलो करती है. एंड द मेजॉरिटी ऑफ अ पॉलिसी इन द DRDA, डिस्ट्रिक्ट रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, वॉज फॉर्मेड बाय द सेक्रेटेरिएट. सेक्रेटेरिएट मतलब they were implemented by the district magistrate, but district magistrate has no role in the policy making. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पॉलिसी नहीं बनाता है, वो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है, और DRDA का पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करता है सेक्रेटेरिएट. तो ये ऐसे रहा कि अप्रोच चेंज किया गया. अप्रोच फोकस इज़ मोर ऑन पॉवर्टी एलिविएशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इंडस्ट्रीज़ डेवलप करना, फूड सिक्योरिटी को प्रोवाइड करना, इन सब के ऊपर. ओके, शिफ्ट हुआ. नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्ट्रक्चर आपको पता चलेगा. अब 1970s में क्या हुआ कि एक नेक्स्ट देखते हैं हम. ये बलवंत राय मेहता कमेटी सक्सेसफुली चलता गया. यू नो 19 हम बलवंत राय मेहता कमेटी ख़त्म हो गया. अब हम आते हैं 1977 में. हमें देखने को मिलते हैं अशोक मेहता कमेटी. अशोक मेहता कमेटी क्यों अचानक? बलवंत राय मेहता कमेटी तो ठीक चल रहा था, अचानक क्यों? क्योंकि सरकार बदल गई. 1977 में किसका सरकार है और किसका है? मोरारजी देसाई का. ओके, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट. मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने एक और कमेटी अपॉइंट की, अशोक मेहता कमेटी. ये सजेशन और इम्प्लीमेंट भी हुआ, अगर आपको पता है तो यही मोरारजी देसाई गवर्नमेंट. What the Morarji Desai government did is that it appointed Ashok Mehta committee, and Ashok Mehta committee suggested that इसका भी कुछ रिकमेंडेशंस आती है. अब क्या रिकमेंड करते हैं देखते हैं. पहले ये रिकमेंड करती है 2 टायर होना चाहिए. 2 टायर रिकमेंड करते हैं. बलवंत राय ने 3 टायर रिकमेंड की और ये 2 टायर एक्चुअली रिकमेंडेशन की, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बलवंत राय में नॉन यूनिफॉर्मिटी देखने को मिली. अब अशोक मेहता स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि 2 टायर कमेटी होना चाहिए. 2 टायर मतलब आई ड्रॉ नीटली. 2 टायर मतलब एक होती है मंडल और ब्लॉक, दोनों एक ही बात है, मंडल और ब्लॉक. और दूसरा होता है डिस्ट्रिक्ट. सिर्फ 2 टायर्स ही है. एंड वो एक टर्म बोलते हैं, फिक्स्ड टर्म फॉर 4 years. एंड वो ये भी बोलते हैं कि रेगुलर इलेक्शंस होना चाहिए, और सोशल ऑडिट होना चाहिए.
एंड फिफ्थ ये बोलती है कि पॉलिटिकल पार्टीज, पंचायती राज इलेक्शंस में पॉलिटिकल पार्टीज होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज इन PRA इलेक्शंस। ओके, इन ये सब बोलते हैं। So what is social audit, by the way? Social audit is nothing but whether the system is yielding positive or negative output. ये डिटरमाइन करने के लिए हम एंड ऑफ द ईयर एक सोशल ऑडिट लेते हैं। ओके, सो देर मस्ट बी अ सोशल ऑडिट एंड देर मस्ट बी रेगुलर इलेक्शंस एंड द टर्म ऑफ द ईच party, ruling party must be for 4 years, and these are all discussed, these are all the recommendations given by the Ashok Mehta committee. So that's all. But do you if you remember, this had Morarji Desai government did not stay for long. Okay, the party stayed for a short term and this Ashok Mehta committee is failed. ओके, क्योंकि इसका गवर्नमेंट ही शॉर्ट टर्म है। एंड फिफ्थ में हम देखते हैं कि सॉरी फिफ्थ हमें देखने को मिलती है क्या, GVK राव कमेटी। GVK राव कमेटी 1985। So GVK Rao Committee 1985. The Rajiv Gandhi government appointed GVK Rao Committee. Okay, Rajiv Gandhi. Rajiv Gandhi government appointed GVK Rao Committee, and for the sake of Panchayat Raj institution, a separate position will be created called DDC, District Development Commissioner. Okay. सो एक सेपरेट पोजीशन दिया गया कॉल्ड DDC, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, and this district development commissioner must be equivalent to a rank of an IAS officer, but not district magistrate. Okay, this is GVK Rao Committee 1985. तो ये ऐसे किया, बट ये ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया, एंड 1986 में राजीव गांधी गवर्नमेंट एक और कमेटी भी सेटअप करती है, वो भी देखते हैं। LM Singhvi कमेटी। एक्चुअली दिस टॉपिक इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर मेंस। पूछ लेते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस कैसे पंचायत राज इंस्टीट्यूशन डेवलप हुआ, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस ही पूछते हैं, क्योंकि प्री इंडिपेंडेंस और बहुत सारे कमिटीज़ है, तो हम वो सब चीज़ें डिस्कस नहीं किया। आप अगर चाहे तो लक्ष्मीकांत में देख सकते हो। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953, बलवंत राय मेहता कमेटी 1957, ये याद रख लीजिए प्रीलिम्स के लिए भी। फर्स्ट फॉर्मल कमेटी टू रिकमेंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। ओके, एंड द फर्स्ट पंचायत वॉज एस्टेब्लिश्ड इन नागपुर, ये भी पूछ सकता है। And the second, it was established in Andhra Pradesh, Mahbubnagar. By 1967-68, we had 5.79 lakh Panchayat Raj institution. But the thing is that there is a non-uniformity of structures. राजस्थान में 3 इंटायर और वेस्ट बंगाल में 4, ऐसे अलग अलग से देखने को मिला। And by 1970s, the approach of the government was changed, and it focused mainly on poverty, employment, industries, food, and there was also a separate authority for monitoring this, that is District Regional Development Authority, and it has a DM. I mean, the policies are implemented by the DM, District Magistrate, but these policies are not made by DM. Policy making में District Magistrate का कोई हाथ नहीं है। पॉलिसी मेकिंग कौन करता है? सेक्रेटेरिएट करता था। ओके, एंड देन अशोक मेहता कमेटी 1977, ये फेल हो गया। ये मोरारजी देसाई का गवर्नमेंट था, वो 2 टायर सिस्टम को रिकमेंड किया था, सोशल ऑडिट के लिए भी रिकमेंड किया, और पॉलिटिकल पार्टीज होना चाहिए, रेगुलर इलेक्शंस होना चाहिए, टर्म पीरियड 4 years होना चाहिए, ये सब चीज़ें डिस्कस किया अशोक मेहता कमेटी 1977। इट वॉज फेल्ड। उसके बाद राजीव गांधी गवर्नमेंट आती है, एंड GVK राव कमेटी 1985। ओके, 1952 हुआ, 1953 हुआ नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, एंड उसके बाद थर्ड में क्या आया? बलवंत राय मेहता कमेटी
it is 1957. Okay, 1957. And then Ashok Mehta Committee 1977, GVK Rao Committee 1985. हम एक बार लिख लेते हैं, मैजिक पेन यूज़ करते हैं. ओके, 1952 में कौन सी था, ये कम्युनिटी डेवलपमेंट सर्विस था. 1953 में नेशनल एक्सटेंशन सर्विस था, कम्युनिटी डेवलपमेंट सर्विस, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस. एंड देन 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी है. एंड 1957 के बाद 19 कौन से साल में था, 1977. ओके, 1952, 1953, 1957, 1977, 1985, ये यहाँ तक है ना. 1977 में 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी, 1977 में अशोक मेहता कमेटी, ये बलवंत राय मेहता कमेटी, ये अशोक मेहता कमेटी. एंड 1985 में GVK राव कमेटी, 1985. ओके, GVK राव कमेटी किसका है, राजीव गांधी का है. ओके, दिस इज़ राजीव गांधी का है. एंड ये मोरारजी देसाई का है. ओके, यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए. LM सिंघवी कमेटी, ये कौन से साल में सेटअप किया गया है, LM सिंघवी कमेटी 1986 में. LM सिंघवी कमेटी 1986. ओके, सो राजीव गांधी was also appointed. राजीव गांधी also appointed this LM सिंघवी कमेटी. सेम राजीव गांधी 1985 के बाद 1986 राजीव गांधी ने ही अपॉइंट किया इस कमेटी को. एंड यू नो, इसमें मेन यही बात होती है कि टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायत राज इंस्टीट्यूशन. तो ये भी थोड़ा मतलब याद रखो कि फर्स्ट कमिटी to talk about constitutional status to Panchayat Raj institutions, that is LM Singhvi committee. Okay, so there is a 64th constitutional amendment bill 1989. इसके बाद 64th constitutional amendment bill पास किया गया, amendment bill 1989. लेकिन लोकसभा एक्सेप्ट किया, राज्यसभा ने रिजेक्ट किया, इसको डिनाई किया. एंड देन उसके बाद नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट फॉर्म होती है. एंड देन 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास करती है. ये भी फेल हुआ, बट लेकिन इट इज़ द फर्स्ट कमिटी ओके टू रिकमेंड द कॉन्स्टिट्यूशनल पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस. ओके, एंड देन आती है PV नरसिम्हा राव गवर्नमेंट. मतलब गवर्नमेंट्स फेल हुए थे, लेकिन ये नहीं फेल हुआ. ओके, मतलब ये बिल अप्रूव नहीं हुआ, बिल पेंडिंग में थी क्योंकि गवर्नमेंट्स चेंज होते जा रहे थे. फॉर एग्ज़ाम्पल पहले राजीव गांधी गवर्नमेंट था, उसने 64th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास किया, लेकिन ये तो एक्सेप्ट नहीं हो रही थी. तो एंड देन उसके बाद नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट आती है राजीव गांधी के बाद, लेकिन तब भी ये पास नहीं होती है. एंड देन नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट के बाद 74th कॉन्स्टिट्यूशन बिल पास करता है, ठीक है, तब भी ये पास नहीं होती है. एंड देन आता है, मैं ऐसे ही होती जाती है. एंड देन PV नरसिम्हा राव आता है, PV नरसिम्हा राव गवर्नमेंट. तो इनका गवर्नमेंट क्या करती है, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 सक्सेसफुली पास करती है. सो यू शुड रिमेंबर दिस. PV नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने ही पास किया 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 को. ओके, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 वर पास्ड बाय द PV नरसिम्हा राव गवर्नमेंट. एंड 73rd गवर्नमेंट ये टॉक करती, ये किसके बारे में बात करती है, ये रूरल गवर्नेंस के बारे में बात करती है, रूरल गवर्नेंस. ओके, एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ये बात करती है अर्बन गवर्नेंस के बारे में. ओके, अर्बन गवर्नेंस के बारे में. एंड दिस 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट was added to the part 9 of our constitution to schedule 11 and schedule 11 में ऐड किया गया. schedule 11 में
एंड ये शेड्यूल 12 में ऐड किया गया एंड दिस इज़ पार्ट 9 एंड दिस इज़ पार्ट 9 ये ओके। एंड 29 फंक्शंस, इसके अंदर 29 functions were added to the Panchayat Raj institutions and 18 functions were added to urban local bodies. ओके हम आगे डिस्कस करते हैं वो क्या है। ओके सो यहाँ तक क्लियर है। हम हम 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 डिस्कस करते हैं। ओके 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, इसमें ना 2 प्रोविजंस है, 2 प्रोविजंस। सम प्रोविजंस आर कंपल्सरी एंड सम प्रोविजंस आर ऑप्शनल। ओके सम प्रोविजंस आर कंपल्सरी एंड सम प्रोविजंस आर ऑप्शनल। सो कंपल्सरी प्रोविजंस क्या है और ऑप्शनल प्रोविजंस क्या है? कंपल्सरी ये रिकमेंड करती है कि ग्राम सभा इस्टेब्लिश होना चाहिए, कंपल्सरी ग्राम सभा, एंड देर मस्ट बी 3 टायर, देर मस्ट बी 3 टायर ओके। कंपल्सरी 3 टायर पंचायत राज इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। डायरेक्ट इलेक्शंस टू ऑल 3 टायर्स एंड मिनिमम एज टू कंटेस्ट इलेक्शंस इज, मिनिमम एज कम से कम 21 ईयर्स होना चाहिए, 21 ईयर्स ओके। मिनिमम एज 21 ईयर्स एंड टर्म प्रिस्क्राइब करती है टर्म 5 ईयर्स एंड इट ऑल्सो सेज दैट रिजर्वेशंस मस्ट बी गिवन फॉर SC ST women okay। and it also talks about state election, compulsory state election commission and compulsory state finance commission okay। so what are the optional provision? it talks optionally OBC को रिजर्वेशन दे सकते हो ओके। OBC रिजर्वेशन, it talks about ऑप्शनल में OBC रिजर्वेशन, न्याय पंचायत मतलब जस्टिस ओके, न्याय पंचायत भी रख सकते हो एंड नॉमिनेशन भी हो सकता है। अगर आपको नॉमिनेट करना है किसी को नॉमिनेट कर सकते हो। नॉमिनेशन एट ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल इज़ इंटरमीडिएट लेवल, ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नॉमिनेशन चल सकती है। एंड देन गिविंग मोर एंड मोर पावर्स टू पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस इन ऑर्डर टू मेक देम ऑटोनॉमस बॉडी। पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को ऑटोनॉमस बॉडीज़ बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? बाय गिविंग पावर्स ओके। ये कुछ ऑप्शनल है, चाहे तो कर सकते हैं अंडर 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। So this is 3 tier. In this 3 tier if you remember we have already discussed grassroots level पे village होती है and block level और intermediate level, ये इंटरमीडिएट लेवल है एंड सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल होती है। इसको हम बोलते हैं विलेज पंचायत, सेकेंड लेवल पे बोलते हैं हम ब्लॉक पंचायत एंड थर्ड लेवल पे बोलते हैं हम डिस्ट्रिक्ट पंचायत ओके। बट यू नो व्हाट, दिस ब्लॉक पंचायत ना मतलब 3 टायर ही है, लेकिन ये ब्लॉक पंचायत में एग्जम्पशंस है, मतलब इट इज़ एग्जम्प्टेड फॉर पॉपुलेशन फॉर स्टेट्स विथ पॉपुलेशन लेस देन 20 लाख। अगर 20 लाख से ज़्यादा कम पॉपुलेशन है तो ये ब्लॉक लेवल की ज़रूरत नहीं है। 2 टायर पंचायत राज इंस्टीट्यूशन भी अप्रूव्ड है अंडर एज पर लॉ, इट इज़ अप्रूव्ड। सो एट द लेवल ऑफ विलेज और ग्राम पंचायत लेट अस डिस्कस मोर इन डेप्थ ओके, क्योंकि ये हमारे ग्रास रूट है ना, तो विलेज लेवल पे हम डिस्कस करते हैं। मतलब ईच लेवल पे हम पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को डीपली चेक करते हैं। पहला विलेज में ओके, पहला विलेज लेवल पे, दूसरा ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ओके। फर्स्ट एट द लेवल ऑफ विलेज लेवल ओके, विलेज लेवल को हम ये भी बोलते हैं ग्राम पंचायत। ये डिस्कस करते हैं
एंड उसके बाद हम सेकंड डिस्कस करते हैं क्या, किसके बारे में, ब्लॉक पंचायत डिस्कस करते हैं, ठीक है। ब्लॉक पंचायत को हम ये भी बोलते हैं ब्लॉक समिति, ब्लॉक समिति, पंचायत समिति भी हम बोलते हैं, पंचायत समिति, ब्लॉक समिति, तालुका पंचायत। अगर जो भी ये सब नाम अगर देखते हो तो आपको पता होना चाहिए एक ब्लॉक लेवल की पंचायत है। ओके, ब्लॉक पंचायत, ब्लॉक समिति, पंचायत समिति, ब्लॉक पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ब्लॉक समिति बोल सकते हैं इसको हम, पंचायत समिति बोल सकते हैं, तालुका पंचायत भी बोल सकते हैं। ओके, एंड उसके बाद हम थर्ड डिस्कस करेंगे एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ओके, डिस्ट्रिक्ट पंचायत डिस्कस करेंगे। डिस्ट्रिक्ट पंचायत को हम जिला परिषद भी बोलते हैं, जिला परिषद। ओके, एट द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट पंचायत और जिला परिषद। ओके, ब्लॉक पंचायत, ब्लॉक समिति, पंचायत समिति, तालुका पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जिला परिषद। ओके, ये हमने डिस्कस किया। एट द लेवल ऑफ विलेज और ग्राम पंचायत we need to discuss 10 things. Okay, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत को कौन इलेक्ट करता है? इट इज़ इलेक्टेड बाय ग्राम सभा। क्लास 9 की पॉलिटी टेक्स्ट बुक में आप पढ़ा होगा कि ग्राम पंचायत इट इज़ इलेक्टेड बाय ग्राम सभा, एंड ग्राम सभा इज़ अ बॉडी ऑफ registered voters. It is a body of registered voters in gram sabha area. जो भी विलेज है, body of registered voters, whatever the gram sabha is, it is a body of registered voter in the gram sabha area. Sorry, it is not gram sabha area, gram panchayat area. Body of registered voters in gram panchayat area. Okay, one gram sabha must have for example, let's say one gram sabha must have 1000 people. तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत में फिर से कुछ ग्राम सभा होते हैं, सो वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा विलेज पंचायत कौन होना चाहिए। Gram Sabha is an example of direct democracy. If I say this is a best example of direct democracy. A Gram Sabha is example of direct democracy. Okay. So Gram Sabha, it meets 2 times a year to discuss ग्राम पंचायत इलेक्शंस, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान डिस्कस करने के लिए 2 टाइम्स ईयर मीट करती है। एंड सो यू नो, इफ़ आई टॉक, लेट अस टेक अ ब्लॉक फर्स्ट। ओके, हम इस ब्लॉक को और डिवाइड कर सकते हैं ऐसे। ओके, अब इसमें मान ले ये एक वार्ड है। ओके, सो दिस एंटायर थिंग इज ग्राम पंचायत, एंड ग्रुप ऑफ वार्ड्स मेक व्हाट, ग्राम पंचायत। ओके, एंड इस वार्ड का एक हेड होता है, मतलब इस पूरा ग्राम पंचायत का एक हेड होता है। इस हेड को हम बोलते हैं क्या, प्रधान। उत्तर प्रदेश में हम प्रधान बोलते हैं, उत्तर प्रदेश, ये प्रीलिम्स में आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रधान बोलते हैं, हरियाणा में सरपंच बोलते हैं हम, बिहार में मुखिया बोलते हैं, गुजरात में अध्यक्षा बोलते हैं। प्रधान कहाँ पे, प्रधान उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ओके, वहाँ पे प्रधान। सरपंच कहाँ पे, हरियाणा, पंजाब। मुखिया बिहार, अध्यक्ष गुजरात। ओके, so the manner of the election of head of the village panchayat or a gram panchayat is determined by the state in accordance with the act provided for the purpose. Okay, this act will be changing from time to time, so
sometimes it can be direct, sometimes it can be indirect election. It is based on the central party or the ruling party. Okay. The village or gram panchayat is elected by gram sabha, and gram sabha is a body of registered voters in gram panchayat area, and it is a gram sabha is the best example of direct democracy. मतलब group of words make gram panchayat, एंड ग्राम पंचायत का हेड को हम प्रधान बोलते हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में, सरपंच बोलते हैं हरियाणा पंजाब में, मुखिया बोलते हैं बिहार में, और अध्यक्षा बोलते हैं गुजरात में. अब नेक्स्ट देखते हैं ब्लॉक पंचायत, ब्लॉक समिति या फिर पंचायत समिति या फिर तालुका समिति. तो इसको भी हम ऐसे ही कैटेगराइज करते हैं. पहले इसे देखते हैं. इसको हम बोल सकते हैं कि द एरिया इज़ नॉट यूनिफॉर्म. समटाइम्स द एरिया ऑफ ईच वार्ड इट विल बी बेस्ड अपॉन द पॉपुलेशन. ओके, मान ले ये एक विलेज पंचायत है. लेट अस से दिस इज़ अ विलेज पंचायत. ओके, अब हम थोड़ा एरिया शेयर करते हैं, थोड़ा सा एरिया. अब हम इस पूरे एरिया को ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये एक ब्लॉक है. ओके, नाउ यू अंडरस्टूड. ग्रुप ऑफ विलेज पंचायत्स मेक अ ब्लॉक. ओके, ब्लॉक पंचायत्स इट कंसिस्ट ऑफ 3 members. It consists of 3 members. Okay, who are the 3 members? One, they are directly elected members हो सकते हैं, directly elected members. Ex officio member. Who is ex officio member? He is the head of village panchayat. Okay, head of village panchayat. And third, nominated members. ओके, नॉमिनेटेड मेंबर्स हो सकते हैं. चेयरपर्सन ऑफ ब्लॉक पंचायत इज डायरेक्टली इलेक्टेड. यू नो दैट. ओके, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स. यू नो, ब्लॉक पंचायत में इनडायरेक्ट इलेक्शन ही होती है. मतलब डायरेक्टली इलेक्टेड बाय इनडायरेक्टली इलेक्टेड मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शंस होती है ब्लॉक पंचायत में. ओके, एंड हेड ऑफ द ब्लॉक समिति इज कॉल्ड चेयरपर्सन. ओके, ये इनका जो भी हेड है हम इसको बोलते हैं चेयरपर्सन. ये यहाँ पे लिख लेते इस साइड, क्योंकि हमने भी यहाँ पे भी लेफ्ट में लिखा ना. हेड को हम बोलते हैं क्या, चेयरपर्सन. ये हो गया ब्लॉक पंचायत. अब नेक्स्ट देखेंगे डिस्ट्रिक्ट पंचायत और जिला परिषद. ये क्या है? अब ये भी ऐसे ही है. डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ग्रुप ऑफ ब्लॉक्स मेक अ डिस्ट्रिक्ट, एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत ही इज़ इलेक्टेड डायरेक्टली बाय, मतलब डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स हो सकते हैं. डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स. एक्स अफिशियो मेंबर. एक्स अफिशियो मेंबर्स कौन हो सकते हैं? एक्स अफिशियो मेंबर्स. हेड ऑफ ब्लॉक समिति is head of block samiti by system of rotation. And nominated members MP, MLA, MLCs ये nominate हो सकते हैं. so we will add nominated members. ये भी members हो सकते हैं nominated members. they can be MP, MLA, MLCs. okay, so chairperson of the district panchayat is indirectly elected by directly elected members. समझ आया? यहाँ पे डिफरेंस ये है कि ये चेयरपर्सन जो है डायरेक्टली इलेक्टेड बाय इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स. इनका जो हेड है, कौन है हेड? चेयरपर्सन ही है. एक और चेयरपर्सन ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ही इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स.
directly elected by indirectly elected members, indirectly elected by directly elected members. Okay, head is the chairperson, and the chairperson is indirectly elected by directly elected members. So there are some previous year questions. Repetition of all heads of a vice president in a block samiti, and repetition of all heads of vice president in block samiti at once. ऐसे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एंड वो भी हम आगे देखते हैं. ओके, सो हम इस चीज़ को और आगे देखते हैं. So we have district panchayat, block panchayat, village panchayat. इस साइड हम देखते हैं इलेक्टेड कंपोनेंट्स देखते हैं, और इस साइड हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कंपोनेंट. ओके, डिस्ट्रिक्ट ये एक का चेयरपर्सन देखते हैं. इसको इलेक्शन से कौन आता है, कौन बनता है चेयरमैन? ग्राम पंचायत या फिर प्रधान बोलते हैं. ठीक है, प्रधान कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में. एंड ग्राम पंचायत मेंबर भी बोल सकते हैं हम. एंड यहाँ पे चेयरपर्सन बोलते हैं. चेयरपर्सन मतलब यहाँ पे कौन कौन रहता है इलेक्टेड? ग्राम पंचायत मेंबर्स मतलब ग्राम सभा का प्लस प्रधान. चेयरपर्सन रहता है प्लस वार्ड मेंबर्स रहते हैं. एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत लेवल पे कौन रहता है? वार्ड मेंबर्स एंड चेयरपर्सन. एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट पंचायत लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? CEO. एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ही कैन बी एन IAS और PCS सीनियर PCS ऑफिसर हो सकते हैं. ओके, CEO. और ब्लॉक पंचायत BDO ब्लॉक डिविजनल ऑफिसर, he can be a PCS ऑफिसर. एंड VDO विलेज लेवल पे. ओके, VDO कैन बी अ पंचायत सेक्रेटरी. तो इसके साथ साथ हेड ऑफ स्टाफ भी होते हैं. ओके, नाउ वी हैव फिनिश्ड मोस्ट ऑफ आवर कंटेंट. लेट अस डिस्कस मिसलेनियस प्रोविजंस लाइक टेन्योर क्या हो सकता है, मिनिमम एज क्या है. 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में कुछ प्रोविजंस डिस्कस करता है. सम मिसलेनियस प्रोविजंस. ओके, सम मिसलेनियस प्रोविजंस. पहले टेन्योर होता है 5 years. ओके, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन सर्व फॉर 5 years. एंड मिनिमम एज क्या है? 21 years मिनिमम एज. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. रिजर्वेशंस 1/3 of the total seats are reserved, okay, for women, and it is based on 1/3 of the total seats of all the three tiers, including the head of the tiers, shall be reserved for women. Okay, and the SC and ST reservation is in accordance with the population of SC and ST. Accordingly, they are also given reservation here. Okay, ये reservation women को SC ST को मिलती है. और हमने डिस्कस किया OBC रिजर्वेशन ऑप्शनल है. एंड ओके, टेन्योर 5 years. हम इसको थोड़ा एलॉबरेटेडली डिस्कस करते हैं. टेन्योर 5 years क्या होता है? ओके, पहले टेन्योर को डिस्कस करने पहले हम एक और चीज़ भी डिस्कस करते हैं, वो है राइट टू रिकॉल. राइट टू रिकॉल मतलब आपके पास अधिकार है इलेक्ट करने का और रिमूव करने का भी. रिमूव कैसे करते हो? राइट टू रिकॉल मतलब elect and recall, remove also. So this is what we say, it is a tool of direct democracy.
It is a tool of direct democracy and it is only available in some states like Haryana, Jharkhand, Bihar, Madhya Pradesh, Chhattisgarh. ऐसे available in only few states like Haryana, Bihar, Jharkhand, छत्तीसगढ़ और क्या मध्य प्रदेश, ऐसे कुछ ही स्टेट्स में ये अवेलेबल है राइट टू रिकॉल. एंड यहाँ पे भी अगर मान ले हाफ ऑफ द टर्म ख़त्म होती है तो सी इफ़ यू गेट 1/4 ऑफ द रीजनल पार्टीज, if 1/4 of the total regional parties say that they want to recall the representative, then the SEC he conducts a mini election, and in that mini election if 50% of the registered voters are in favor, अगर मान ले इलेक्शंस होती मतलब ये कंप्लेन करते हैं कि हम रिकॉल करना चाहते हैं, तो अगर 50% फेवरेबल है तो he will be recalled, the representative whoever is there he will be recalled. okay, and is our right to recall. और यहाँ पे भी 10 और 5 years में एक इम्पॉर्टेंट डिटेल मैंने मिस किया. फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए ये मान ले इसका पूरा टेन्योर फॉर 5 years. ओके, ये टेन्योर 5 years की टेन्योर. अब यहाँ पे इसने मान ले 1.5 year सर्व किया. 1.5 के बाद क्या हुआ, डिसोल्यूशन हो गया. डिसोल्यूशन ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस करप्शन. So he was the panchayat, the local self governance. So what is this? The local panchayat, it was dissolved. It was dissolved. So elections should be conducted within 6 months. This is the rule. Okay, for new panchayat elections should be conducted within 6 months, and of the remaining 6 months के बाद जो भी remaining है वो न्यू रिमाइनिंग पीरियड ये न्यू पार्टी ही रूल करेगी. बट हावेवर इफ दिस पीरियड इज लेस दैन 6 months, then no election will be conducted. and no election मतलब रूल कौन करता है? अगर विलेज पंचायत डिसॉल्व हुआ तो कौन केयर करता है? ब्लॉक पंचायत. अगर ब्लॉक पंचायत भी डिसॉल्व हुआ तो कौन केयर करता है? डिस्ट्रिक्ट पंचायत. बस ऐसे. अगर डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी डिसॉल्व हुआ तो स्टेट टेक केयर करती है. बस इतना ही. ओके, यू नीड टू रिमेंबर दिस इज़ द कंप्लीट टॉपिक टिल लोकल सेल्फ गवर्नेंस. आई होप यू एन्जॉयड द सेशन. थैंक यू वेरी मच. ब्रीफली एक बार डिस्कस करना है तो डिस्कस कर लेते हैं. We will also discuss the municipalities in the later session. Democratic decentralization part 1 लिखते हैं हम इसको. ओके, एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस पार्ट 2 जिसमें हम म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. पार्ट 9 talks about 73rd Constitutional Amendment Act 1992 added panchayats, and 74th Constitutional Amendment 1992 added municipalities, and 97th Constitutional Amendment in 2012 added cooperative societies. And they are added in शेड्यूल कौन सी शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 में. ओके, देर आर टोटल 12 शेड्यूल्स. ओके, एंड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? पंचायत द पावर्स एंड फंक्शंस आर गिवन to tier of the government which is nearest to the people. And this is all democratic decentralization is based on the principle of subsidiarity. and मतलब अगर 1992 में ये पंचायत सिस्टम लेके गया पंचायत इंस्टीट्यूशन, तो 1992 का पहले क्या है? वैदिक एरा में पंचायतम है. ओके, एपिक एरा में जनपद एंड पुर सिस्टम है. कैस्ट पंचायत किंग्स काउंसिल का एक मेंबर होता है. एंड मिडावल एरा में दिल्ली सल्तनत का सिस्टम है. वहाँ पे विलायत्स, द दिल्ली सल्तनत was split into vilayats, and vilayats had separate head for revenue who is called Batwari. And for administrative purposes we had Makaddam, and for dispute resolution we had Chaudhary. In which era? In medieval era. And in British era there was a Mayo Resolution 1870 which is the Magna Carta of Panchayat Raj institutions. Okay, Mayo Resolution 1870 सब कुछ केयर करती थी. And Lord Ripon was called father of self governance. Okay, which is important for your answering prelims. You just remember the little fact.
And Panchayat Raj post-independence era, a constitutional philosopher, Gran Willie Austin, started this revolution. And after this, there were three approaches: Gandhian approach, Nehruvian approach, and Ambedkar approach. We are currently following Gandhian approach. Gandhian approach is bottom to top approach, and he talks about village Swaraj. अगर village developed है तो देश developed है, ये गांधीवियन अप्रोच. और नेहरूवियन अप्रोच ये बोलती है top to bottom approach. He talks about modernization and industrialization. If a country is industrialized, then automatically the village is also industrialized. And तीसरा आती है अम्बेडकर अप्रोच. अम्बेडकर अप्रोच बात करती है पंचायत के बारे में. अगर पंचायत नहीं है तो रीजनल कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं होती है, तो इसीलिए पंचायत नहीं होना चाहिए. यही पंचायत राज पोस्ट इंडिपेंडेंस, तीन अप्रोचेस. एंड वी आर डिस्कसिंग नाउ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स 1952. ये क्या यूएस ने फिनेंशियल असिस्टेंस करी. इस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में हम फोकस करते हैं मेनली 3 पैरामीटर्स पे. इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, सोशल जस्टिस, वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर फोकस करना, और तीसरा डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, लोगों के अंदर जागृति, मतलब अवेयरनेस प्रमोट करना. तो ये सब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 के अंदर आती है. एंड दोनों चीज़ें फेल हुआ. नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 भी फेल हुआ. ये इंश्योर करती, ये इसलिए लेके आया कि एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री में ये सीडीपी को लेके आने के लिए, लेकिन ये सीडीपी 1952 और 1953 दोनों फेल हुआ. एंड थर्ड आती है बलवंत राय मेहता कमेटी 1957. दिस इज़ अ वेरी सक्सेसफुल मॉडल एंड दिस इज़ द फर्स्ट फॉर्मल कमिटी टू रिकमेंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस. एंड हियर वी हैड विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत सिस्टम. ओके, विलेज लेवल पे डायरेक्ट इलेक्शंस होती है, एंड ब्लॉक लेवल पे इनडायरेक्ट इलेक्शंस, एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीएम एज अ हेड. तो इसको इसलिए हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट, मतलब इसको यही बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सेंट्रिक मॉडल ऑफ ग्रोथ, डीएम सेंट्रिक मॉडल ऑफ ग्रोथ भी हम बलवंत राय मेहता कमेटी को बोलते हैं. क्योंकि इसको याद रखिए. एंड फर्स्ट पंचायत वॉज सेटअप इन नागपुर इन 1959. And second panchayat was set up in Andhra Pradesh, Mehboob Nagar. And by 1967-68, 5.7 lakh panchayat Raj institutions were set up. But the thing is that there is a non-uniformity of structure. For example, Rajasthan में 3 टायर, और वेस्ट बंगाल में 4 टायर, जम्मू कश्मीर केरला में 1 टायर, उड़ीसा हरियाणा में 2 टायर देखने को मिला. तो इसीलिए ये लेके आया कि डिस्ट्रिक्ट रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी कोई न्यू अप्रोच की तरफ लेके जा रही थी. मतलब इनका फोकस पॉवर्टी एलिविएशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फूड सिक्योरिटी, इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी लेके आया. लेकिन क्या हुआ कि ये इनका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सिर्फ पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करता है, पॉलिसीज़ बनाता नहीं है. पॉलिसीज़ बनाता है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बाय 1970. सो 1950 to 1953 एंड 1957 बलवंत राय हो गया. अब नेक्स्ट आती है 1957 के बाद नेक्स्ट डायरेक्टली हम जंप करते हैं 1977 अशोक मेहता कमेटी. अशोक मेहता कमेटी इट इज़ फॉर्मड बाय द मोरारजी देसाई गवर्नमेंट. लेकिन मोरारजी देसाई गवर्नमेंट इज़ फॉर शॉर्ट टर्म एंड ये भी फेल हुआ. लेकिन ये कुछ चीज़ें रिकमेंड करते देखते हैं जल्दी. इट इज़ अ 2 टायर पंचायत राज ब्लॉक, मतलब मंडल लेवल होती है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल होती है. और ये बोलते हैं कि रेगुलर इलेक्शंस होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ होना चाहिए इसके अंदर, एंड टर्म पीरियड 4 years. ये इलेक्शंस के बारे में बात करती है. एंड ये भी बोलते हैं कि सोशल ऑडिट रिपोर्ट होना चाहिए एंड ऑफ एवरी ईयर. ओके, ये अशोक मेहता कमेटी 1977. उसके बाद आती है GVK राव कमेटी 1985. मोरारजी देसाई गवर्नमेंट फेल, मतलब शॉर्ट टर्म पीरियड पे था. तो एंड देन आती है राजीव गांधी गवर्नमेंट. राजीव गांधी गवर्नमेंट 1985 एक पोजीशन क्रिएट करती है कि कौन सी पोजीशन, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर. मतलब ए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर कौन हो सकता है? एक IAS ऑफिसर हो सकता है, IAS ऑफिसर हो सकता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर. तो ये एक पोस्ट क्रिएट करती है. एंड राजीव गांधी गवर्नमेंट, मतलब GVK राव कमेटी एक पोजीशन क्रिएट करती है. एंड देन LM सिंघवी कमेटी आती है 1986. GVK राव कमेटी, LM सिंघवी कमेटी दोनों ने राजीव गांधी गवर्नमेंट ने ही इंट्रोड्यूस किया. एक है 1985. ओके,
1985 और दूसरा 1986। एल.एम. सिंघवी कमेटी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। बलवंत राय मेहता कमेटी 1977 के बाद अगर कुछ इम्पोर्टेंट कमेटी है वो एल.एम. सिंघवी कमेटी ही है। ओके, 1957 है ना बलवंत राय, वही 1957 है। उसके बाद अशोक मेहता 1977 फेल हुआ एंड 1986 एल.एम. सिंघवी कमेटी है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के बारे में पहले जो कमेटी बात किया वो एल.एम. सिंघवी। अगर आपकी क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस आती है तो वो होगा एल.एम. सिंघवी कमेटी। अगर क्वेश्चन आती है पंचायत राज इंस्टीट्यूशन देन वो होगा बलवंत राय मेहता कमेटी। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। ये गवर्नमेंट एल.एम. सिंघवी कमेटी जो रिकमेंड किया वो कोई भी गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। राजीव गांधी गवर्नमेंट, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, ऐसे कुछ गवर्नमेंट्स आया लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, नया बिल्स लेके आया एंड इन द एंड फाइनली पी.वी. नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो ये 1992 73rd बात करते हैं रूरल गवर्नेंस एंड 74th बात करती है अर्बन गवर्नेंस के बारे में। एंड रूरल गवर्नेंस इट वॉज एडेड इन पार्ट 9 एज लोकल what is that, it as a panchayats it was added in part 9 and part 9 was added as urban गवर्नेंस। ओके, एंड 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 74th 1992। ओके, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 दो प्रोविजंस देती है, कुछ कंपलसरी प्रोविजंस और कुछ ऑप्शनल प्रोविजंस। कंपलसरी प्रोविजन में ये बोलते हैं कि ग्राम सभा होना चाहिए, मतलब एक विलेज पंचायत को क्राउन इलेक्ट करता है, ग्राम सभा इलेक्ट करती है। इसका पॉपुलेशन कुछ भी हो सकती है, 1000 हो सकते हैं, 900 हो सकते हैं, कुछ भी पॉपुलेशन हो सकती है। एंड ये एक 3 टायर पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करती है। 3 टायर मतलब विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो ब्लॉक लेवल हटा भी सकता है अगर 20 लाख से कम पॉपुलेशन है तो। और ये बोलते हैं कि मिनिमम एज कम से कम 21 ईयर्स होना चाहिए वोटर मतलब इलेक्शन होने के लिए, मतलब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होने के लिए, और टर्म 5 ईयर्स होना चाहिए। एक विलेज पंचायत का टर्म 5 ईयर होना चाहिए। एंड रिजर्वेशन SC ST और वुमेन को दे देना चाहिए। एंड देयर मस्ट बी ए स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड स्टेट फाइनेंस कमीशन। एंड नेक्स्ट ये बोलती है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन भी के बारे में भी ये बात करती है। ओके, एंड 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में कुछ ऑप्शनल प्रोविजंस है। OBC रिजर्वेशन हो सकती है, न्याय पंचायत हो सकती है, नॉमिनेशन शुड बी एट ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, एंड पंचायत राज इंस्टीट्यूशन गिव्स पावर्स टू ऑटोनॉमस बॉडीज़। ओके, पावर्स दे सकती है, पावर्स दे के ऑटोनॉमस बॉडीज़ भी हम बना सकते हैं पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को। तो ये डिस्कस हुआ ऑप्शनल प्रोविजंस के अंदर। एंड देन वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी वन, लाइक विलेज लेवल पे हमने डिस्कस किया, ब्लॉक लेवल पे डिस्कस किया, एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फिर से वी शैल डिस्कस। ओके, विलेज लेवल और ग्राम पंचायत, यहाँ पे ना ग्राम पंचायत इज़ इलेक्टेड बाय ग्राम सभा एंड ग्राम सभा इज़ अ बॉडी ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स इन द ग्राम पंचायत एरिया। सो दिस इज़ द ग्राम सभा इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। अगर आपके प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आता है बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी और ऑप्शंस में ग्राम पंचायत और ग्राम सभा है, आपको टिक करना है ग्राम सभा पे। ओके, एंड ग्रुप ऑफ वार्ड्स इज़ व्हाट क्रिएट्स ग्राम पंचायत। एंड देन हेड ऑफ ग्राम पंचायत इज कॉल्ड प्रधान इन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इट इज़ कॉल्ड सरपंच इन हरियाणा और पंजाब, एंड मुखिया इन बिहार, अध्यक्ष इन गुजरात। एंड नेक्स्ट आती है ब्लॉक पंचायत, ब्लॉक समिति या फिर पंचायत समिति और तालुका पंचायत। तो विलेज पंचायत ना, ग्रुप ऑफ विलेज पंचायत इज कॉल्ड ब्लॉक, एंड ब्लॉक में होता है डायरेक्ट इलेक्टेड मेंबर्स, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स आर नथिंग बट हेड ऑफ द विलेज पंचायत, एंड कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स हो सकते हैं ब्लॉक में। एंड हेड ऑफ द ब्लॉक पंचायत इज अ चेयरपर्सन, एंड चेयरपर्सन इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स। यू नो विलेज पंचायत कौन है? दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, दे आर डायरेक्टली ओके इनडायरेक्टली इलेक्टेड। ग्राम सभा डायरेक्टली इलेक्टेड है ना, तो दीज मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स। ओके, दिस इज व्हाट ब्लॉक पंचायत इज ऑल अबाउट। एंड नेक्स्ट वी शैल डिस्कस डिस्ट्रिक्ट पंचायत और जिला परिषद। जिला परिषद यहाँ पे भी ऐसे ग्रुप ऑफ ब्लॉक पंचायत इज व्हाट डिस्ट्रिक्ट पंचायत, एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत का हेड होता है चेयरपर्सन, एंड इसका मेंबर्स होते हैं डायरेक्ट इलेक्टेड मेंबर्स, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स हु कैन बी MP, MLA और MLC। एंड हेड ऑफ द district panchayat, he is indirectly elected by directly elected members. Okay,
एंड देन इलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब इलेक्टेड कॉम्पोनेंट्स क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पोनेंट्स क्या है, ये देखते हैं. मतलब विलेज पंचायत में इलेक्टेड कौन है, ग्राम पंचायत मेंबर्स, एंड देन प्रधान, हेड ऑफ द विलेज पंचायत. ओके, ये हो सकता है. एंड वार्ड मेंबर्स एंड चेयरपर्सन, वार्ड मेंबर्स एंड चेयरपर्सन, बस यही इलेक्टेड में. और एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब IAS ऑफिसर्स या PCS ऑफिसर्स हो सकता है. BDO बोलते हैं हम ब्लॉक पंचायत लेवल पे. ओके, एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम CEO बोलते हैं, एंड विलेज लेवल पे हम BDO बोलते हैं. ओके, एंड ये कोई भी हो सकता है, कोई IAS ऑफिसर हो सकता है. ठीक. एंड देन हम मिसलेनियस प्रोविजंस देखा, मतलब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन सी प्रोविजंस देते हैं. 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 क्या क्या प्रोविजंस देती है. टेन्योर 5 years. मान ले बीच में डिसोल्यूशन हो गया ड्यू टू सम करप्शन चार्जेस, तो क्या हो सकती है, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड विद इन 6 months एंड द रिमेनिंग पीरियड विल बी रूल्ड बाय न्यू पार्टी. हाउएवर, if the remaining term is less than 6 months, then no elections will be conducted and नो इलेक्शंस विल बी कंडक्टेड. अगर इलेक्शंस नहीं होते तो रूल कौन करता है, विलेज पंचायत डिसॉल्व होगी तो ब्लॉक पंचायत रूल करती है कुछ टेन्योर के लिए, 6 months के लिए. एंड लेस देन 6 months ही है तो ब्लॉक पंचायत टेक केयर करती है. अगर ब्लॉक पंचायत भी डिसॉल्व हो गया तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत, अगर डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी डिसॉल्व हो गया तो स्टेट पंचायत रूल करते हैं. एंड मिनिमम एज इलेक्शन मतलब विलेज पंचायत बनने के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए, वो 21 year होना चाहिए. एंड रिजर्वेशंस must 1/3 of the reservations must be given to women. SC and STs must also be given reservation, and OBC reservation एक optional है. And right to recall, it is a tool of direct democracy and it is only seen in some states like Haryana, Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh etc. And elections मतलब तेरे पास राइट टू इलेक्ट है और राइट टू रिमूव भी है. राइट टू इलेक्ट के लिए हाफ ऑफ द टर्म एटलीस्ट ख़त्म होना चाहिए. अगर हाफ ऑफ द पीरियड ख़त्म होती है उसका, मान लो टेन्योर में उसका टेन्योर 5 years, अब 5 years में इसने 2.5 years रूल किया, 2.5 years बचा. इस 2.5 years में ना राइट टू रिमूव ऑप्शन अवेलेबल है. अगर 1/4 ऑफ द मेंबर्स ये बोलता है कि रिकॉल करना है हमको, तो 50% ऑफ द members are favorable, but then they have the option to right to remove. Okay, this is all it is. We can solve some questions. Let us see Panchayat Raj institutions. Let us solve all the questions after finishing urban local bodies and cooperative societies too. Okay, thank you.